This is Pankaj Kapadia. In this particular video, we are going to learn about the restricted earth fall protection of generator. देखिए हमने जो भी वीडियोस जो हमारी थी उसमें देखा था चैप्टर नंबर 3 और 4 में कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है, वो हमने ट्रांसफार्मर के केस के लिए देखा था, ये जनरेटर के केस के लिए है। लेकिन हालांकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है दोनों में। ठीक है, क्या है हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली दी बायस protection, or you can say merge price protection, based on circulating current principle that provides the protection against internal earth faults only. Fine, but for the large generators, as these are costly, an additional protection scheme called restricted earth fall protection is provided. Fine, so when the neutral is solidly grounded, then the generator gets completely protected against earth fault. Okay, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है न्यूट्रल पॉइंट हमने ग्राउंड किया है थ्रू अर्थिंग रेजिस्टेंस। सो व्हेन द न्यूट्रल इज सॉलिडली ग्राउंडेड, देन द जनरेटर गेट्स कंप्लीटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट। बट व्हेन द न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू अर्थ रेजिस्टेंस, अगर ये सॉलिडली ग्राउंडेड है, अर्थिंग रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अर्थ फॉल प्रोटेक्शन है वो 100% है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है। लेकिन बट व्हेन द न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू दिस अर्थ रेजिस्टेंस, देन द स्टेटर वाइंडिंग्स गेट पार्टली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग प्रोटेक्टेड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस एंड द रिले सेटिंग। ओके, लेट्स से you can say in this particular scheme, the value of earth resistance, relay setting, current rating of earth resistance, that must be carefully selected, okay, while selecting or while designing this kind of structure. So you have to consider some aspects. Okay, so the earth faults are rare near the neutral point. Okay, that we know, हमें पता है कि earth fault जो भी होगा न्यूट्रल पॉइंट के यहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे फॉल्ट होना जो है वो रेयर केस में ही पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि न्यूट्रल के नियर में जो है वो कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है। सो द अर्थ फॉल्ट आर रेयर नियर द न्यूट्रल पॉइंट एज द वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज वेरी लेस। ओके, but when earth fault occurs near the neutral point, then the insufficient voltage across the fault that drives very low fault current than the pickup current of relay coil. Hence the relay coil remains inoperative. Fine. Thus 15 to 20% winding from the neutral side remains unprotected, and in this particular scheme, hence it is called restricted earth fault protection, and it is usual practice to protect 85% of the winding. Fine. So let's say, आपको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ कि while selecting the value of resistor, you have to consider some aspect, but before that we can say that the some part of the winding protected from the earth fault, whereas the some part of the winding left unprotected. Okay, when neutral is solidly grounded, it is possible to protect complete generator winding against phase to earth fault. However, neutral is earth through resistance to limit earth fault current. Okay, so whatever the earth fault current occurs, in order to limit this earth fault current, one resistance it should be connected. Hence neutral is earth through the resistor, and it is not solidly grounded. Why it is not solidly grounded? I have mentioned here that whatever the earth fault current occurs, in order to limit this earth fault current, one resistance it should be connected in series with the neutral point. Okay, so with resistance earthing, it is not possible to protect complete winding from earth fault. Okay, you can say small size generators are sometimes supplied with the neutral ends and internally connected together, and only one terminal is available outside. Fine. So in the merge price protection cannot be applied due to this, and hence we go for earth fault protection. ओके, मर्ज प्राइस जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। दैट इज वाई हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन का सहारा लेते हैं, और दिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट
only earth fault in the protected zone, not outside the protected zone. अगर outside कोई external fault होता है तो वो ये detect नहीं कर पाएगा. क्यों? वो भी हमने देखा है. ठीक है, चलिए. So जब ये रेजिस्टेंस, मतलब जो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया कि ये जो है, ये हमें कुछ एस्पेक्ट जो है वो हमें ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं. सो व्हाइल सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर and earth fault relay setting, the following point should be kept in mind. The current rating of resistor, reactance value and the relay setting should be selected carefully. First point is that. Second one, earth faults are not likely to occur near the neutral point due to less voltage with respect to earth. Okay. Setting of all should be such that protective relay does not operate for earth fault on extra high voltage side. It is usual in practice to protect above 80 to 85% of generator winding against earth fault. Near to the neutral point, the occurrence of earth fault is very unlikely, so we can leave out 15 to 20% of the winding unprotected and 80 to 85% winding is protected by using restricted earth fault protection. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन. ओके, अब चलते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में जाने. ये बेसिक था कि क्यों हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अब जो है आगे चलते हैं. सो एक फिगर जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है. ये फिगर मैंने जो ड्रॉ की है वो है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की ही जो है ये फिगर है. देखिए, चलिए अब समझते हैं. So consider this that the earth fault occurs on phase B. Let's say कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये RYB है. So B phase के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोई फॉल्ट क्रिएट करवाऊँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ये इंटरनल फॉल्ट, देखिए ये इंटरनल फॉल्ट है, ये दोनों सिटीज यहाँ पे प्लेस की है. तो इसके बीच में ये जो पूरा जोन है वो प्रोटेक्टेड जोन है. ठीक है, ये जनरेटर के स्टेटर को प्रोटेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हुआ, मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट पे ये जो है वो फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा, देखिए ये RYB है, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे इस तरह से जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V, और ये कौन सा फेज है B, और ये X पॉइंट पे, सो VBX. और यहाँ पे जो ये ग्राउंड हो चुका है, तो जो भी फॉल्ट करंट आएगा वो क्या होगा, IF. तो जो भी करंट आपका सर्कुलेट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है. ठीक है, ये ग्राउंड में जा रहा है. तो अभी क्या होगा, ठीक है, ये कंडीशन मैंने क्रिएट की. सो कंसीडर दैट द अर्थ फॉल्ट अकर्स ऑन फेज B due to breakdown of its insulation, or you can say anything, insulation to the earth as shown in this particular figure. So the earth current, the fault current IF, this fault current IF will flow through the core. ओके, इंसुलेशन अगर फेल हो चुका है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो भी कनेक्शन है वो वहां पे टच हो रहा होगा कोर को. तो इस तरह से मैंने अभी ये जो है फॉल्ट क्रिएट करवाया है कि कोर के अंदर जो है वो ये फॉल्ट है. तो कोर, ये जो फॉल्ट करंट है वो कहां से फ्लो रहा है, द फॉल्ट करंट IF दैट विल फ्लो थ्रू द कोर फ्रेम ऑफ द मशीन टू अर्थ एंड कंप्लीट द पाथ थ्रू द अर्थिंग रेजिस्टेंस. ठीक है, देखिए ये यहां से कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका पाथ जो है, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, तो इस तरह से इसका पाथ जो है वो कंप्लीट होगा. इज दैट राइट? ओके, इस तरह से कुछ पाथ जो है इसका कंप्लीट होगा. आई रिपीट अगेन दैट कंसिडर द फॉल्ट अकर्स ऑन द फेज B ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन टू द अर्थ एंड द फॉल्ट करंट IF विल फ्लो थ्रू द कोर फ्रेम ऑफ मशीन टू अर्थ एंड कंप्लीट द पाथ थ्रू the earthing resistance. Fine, that I have shown here. The CT secondary current IS, CT secondary current, ये देखिए यहाँ पे CTs ये तीनों मैंने कनेक्ट की है, ये तीन यहाँ पे और ये तीन यहाँ पे. सो इसकी सेकंडरी, ये तो प्राइमरी इसकी ये होगी ना, ये सेकंडरी है, तो ये सेकंडरी इस तरह से कुछ होगी, मतलब यहाँ पे कोई करंट जाएगा तो ये सेकंडरी साइड ही होगी ये CT की. ठीक है, तो सेकेंडरी साइड अगर मैं देखूँ, ये देखिए यहाँ पे ये फॉल्ट करंट यहाँ से आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी फॉल्टी करंट आएगा वो इस तरह से फ्लो हो रहा है. देखिए यहाँ पे फॉल्ट करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है. तो जो भी ये सेकेंडरी साइड में ये फेज B है, यहाँ पे ये करंट इस तरह से जा रहा है, लेकिन ये जो करंट जाएगा सिटी की सेकेंडरी में, मान लीजिए सिटी की सेकेंडरी में IS करंट जा रहा है, वो पास हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी करंट पास हो रहा है वो IS, जो भी IS हो रहा है पास, वो इस तरह से कुछ करंट होगा IS. ठीक है, देखिए अभी क्या होगा, यहां पे द सिटी सेकेंडरी करंट IS फ्लोज थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल.
ऑपरेटिंग कॉइल एंड द रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले कॉइल ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। देखिए यहां पे भी फ्लो हो रहा है, देखिए यहां पे भी फ्लो हो रहा है, और ये IS यहां पे भी फ्लो हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ये जो ऑपरेटिंग कॉइल है ना अपनी, ये ऑपरेटिंग कॉइल है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉइल है। तो ये IS करंट जो है वो यहां से भी फ्लो हो रहा है और इस तरह से भी फ्लो हो रहा है। So the setting of restricted earth fault relay and the setting of overcurrent relay are independent to each other. Under this secondary current IS, the relay operates to trip the circuit breaker and the voltage VBX is sufficient to drive the enough fault current IF when the fault point X is away from the neutral point. Is it right? Okay, so if the fault point this X is nearer to the neutral point, then the voltage VBX is small and not sufficient to drive enough fault current IF, and for this IF relay cannot operate. Thus, part of the winding from the neutral point remains unprotected, and to overcome this, if relay setting is chosen very low to make it sensitive to low fault currents, then wrong operation of relay may result. And the relay can operate under the conditions of heavy through faults, inaccurate CTs and saturation of CTs, etc. Fine. So hence practically 15% of the winding from the neutral point is kept unprotected, protecting the remaining 85% of the winding against phase 2 earth fault. Okay. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ऑपरेटिंग कॉइल है, आप देख सकते हैं ये ओवरकरंट रिले भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉइल है इसकी, और ये और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है। तो हमें पता है कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, जीरो सीक्वेंस करंट पे काम करता है। अगर जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे कुछ हुआ तो जीरो सीक्वेंस करंट जो है इस तरह से इसमें आ सकता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिले प्रोवाइड किया है उसमें तभी ऑपरेट होगा, नहीं तो ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ पे तीनों फेज की यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो अगर फॉल्ट न्यूट्रल के बहुत ही ज़्यादा करीब है तो जो है वोल्टेज जो भी आपका होगा वो किस तरह से होगा, जो भी वोल्टेज आपका VBX है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, और that will not sufficient to drive enough the faulty current IF. Fine. And because of that your relay cannot operate. अगर ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी, ठीक है। सो ये जो बेसिक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का बेसिक आइडिया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। अगर ये पूरा समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप पहले की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्शन के अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। अगर आप लिंक में चलेंगे एक के बाद एक अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। नाउ लेट्स से व्हाट इज द इफेक्ट, देखते हैं। लेट्स से द effect of earth resistance on percentage of winding unprotected, ठीक है। ये इफेक्ट हम देख सकते हैं। देखिए मैंने अभी बोला कि पूरी वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट आपकी प्रोटेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑन परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड, जो भी अनप्रोटेक्टेड है वाइंडिंग उसके ऊपर जो है अर्थ रेजिस्टेंस की इफेक्ट क्या आएगी। सो लेट अस सी द इफेक्ट of earth resistance or percentage of winding which remains unprotected. So consider the earth resistance are used to limit the earth fault current. Let's say अगर मैं एक छोटी सी अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ एक स्टार कनेक्शन मैंने जो है वो ले लिया है। देखिए ये है R, ये है Y और ये है B, और ये जो है वो अल्टरनेटर की वाइंडिंग है। जो भी वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस में, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा अपना, इसके अक्रॉस में मैं V बोल देता हूँ उसे, और ये पॉइंट अपना क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। और उसके अलावा ये जो पोर्शन पूरा है वो है परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग विच इज अनप्रोटेक्टेड। क्या है वो, अनप्रोटेक्टेड।
आगे के वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये अनप्रोटेक्टेड जो है वो क्यों है। ठीक है, मर्ज प्राइस में मैंने बहुत अच्छी तरह के वहाँ पे समझा है, तो आप समझ सकते हैं, वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस, ये अपना अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, आर देखते हैं। चलिए, ये अल्टरनेटर है, ये आर वाई बी है, अपना हो गया। ये कंप्लीट जो है वो पूरा एक फिगर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर लिमिट्स द अर्थ फॉल्ट करंट। इफ द रेजिस्टेंस आर इज वेरी स्मॉल, द न्यूट्रल इज ऑलमोस्ट सॉलिडली ग्राउंड। आप समझ रहे हो, अगर इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, फिर तो ये सॉलिडली ग्राउंड हो जाएगा। देन दी फॉल्ट करंट इज वेरी हाई, बट high fault currents are not desirable, hence small resistance is not preferred for the large machines. Are you getting my point? So for low resistance R, the value of R is selected such that full load current passes through the neutral for a full line to neutral voltage V. Okay, so in medium resistance R, the earth fault current is limited to about 200 ampere. It is limited to about 200 ampere for full line to neutral voltage. For full line to neutral voltage, for a, let's say for a 60 megawatt machine. Okay, so in high resistance R, the earth fault current is limited to about 10 ampere, and this is used for distribution transformer and generator transformers unit. Okay, now higher the value of resistance R, less is the earth fault current. Let's say the higher the value of earth resistance R, higher the value of resistance R, less is the earth fault current, and less percentage of winding gets protected. Okay, so large percentage of winding remains unprotected. Let's say let V is equal to full line to neutral voltage. I is full load current of largest capacity of generator, and R is the earth resistance. So the value of resistor R is equal to what? R is equal to V by I, and the percentage of winding unprotected is given by, let's say the percentage of winding is a percentage of winding unprotected is given by the percentage of winding unprotected is equal to R I0 divided by V into 100, where I0 is the minimum operating current in the primary of current transformer, and if relay setting is used is 15%, then this I0 is 15% of full load current of the largest machine, and so on. And greater the percentage of winding जितनी ज़्यादा होगी, greater the percentage of winding of small capacity machine running, that is parallel, get protected. Fine. So let's say the greater percentage of windings of small capacity machine
running parallel that get protected. Okay, so this is all about the restricted earth fault protection. Thank you.